الله الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا اس الہ العالمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو کہ خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات ہے، جس نے وسیع و عریض زمین کو، وسیع و عریض دنیا کو محض 6 دنوں کی خلیل سی مدت میں پیدا کیا اور اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی برسات ہوجیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، آمینہ کے لال، میرے اور آپ کی دلوں کی دھڑکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائیو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے روبرو پیش کیا. اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ رب العالمین سارے مومنوں سے مخاطب ہو کر سارے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے کہہ رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم اپنے بھائیوں کے تعلق سے یا اپنے بہنوں کے تعلق سے، مومن مرد یا مومن عورتوں کے تعلق سے گمان کرنے سے بچو، ان کے تعلق سے برا سوچنے سے بچو، ان کے بارے میں برا خیال کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز سے بچنے کو کہہ رہا ہے. تو بھائیو، آئیے آگے دیکھتے ہیں بدگمانی کس کو کہتے ہیں. بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ برا خیال کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کے تعلق سے یا بہن کے تعلق سے یا اپنی ماں کے کسی کے بھی تعلق سے، مومن مرد یا مومن عورت کے تعلق سے اگر کوئی چیز کہہ رہا ہے،
کوئی بات کہہ رہا ہے اور سامنے والا اس کو بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے کے، بغیر انفارمیشن کے اور بغیر انکوائری کے، بغیر تحقیق کے اگر اس کو سچا سمجھ لیتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اور سامنے والے کی بات کو سن کر، سامنے والے کی بات کو مان کر، صرف اس کی بات کو سن کر سامنے کسی آدمی کے تعلق سے برا گمان کرنا، اسی کو کہتے ہیں بدگمانی۔ دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے، سننے میں چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بدگمانی لوگوں کے رشتوں کو توڑتی ہے، یہ بدگمانی بھائی بھائی کے بھائی چارے کو توڑ دیتی ہے، یہ بدگمانی لوگوں کے اندر رشتہ داری کو توڑتی ہے، یہ بدگمانی لوگوں کے اندر دشمنی پیدا کرتی ہے، یہ برا خیال، یہ بدگمانی، بری سوچ لوگوں کے رشتوں کو توڑ کر، معاشرے کو توڑ کر سارے لوگوں کو الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے، سننے میں چھوٹی چیز ہے، لیکن یہی بدگمانی بھائی بھائی کے رشتے کو توڑتی ہے، ماں اور بیٹے کے رشتے کو توڑتی ہے، میاں اور بیوی کے رشتے کو توڑتی ہے۔ یہ بدگمانی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو اس بدگمانی سے، یہ برے خیال سے، اپنے بھائی کے تعلق سے برا خیال کرنا، اس تعلق سے روکا ہے، اس تعلق سے روکا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایاکم والظن، لوگوں تم برا خیال کرنے سے بچو، فإن الظن اکبر الحدیث، کیونکہ یہ برا خیال کرنا، یہ بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے، اپنے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے پاس ایک مرتبہ رات گزار رہے تھے۔ اچانک رات میں دیر گئی، رات میں بیچ رات میں راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سے اٹھتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے بستر سے باہر جاتے ہیں، تو فوراً حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بقیع الغرقد قبرستان کو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہاں پر مدفون لوگوں کے تعلق سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بہت دیر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے سے آ کر یہ سارا ماجرا اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ جیسے ہی دعا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے فوراً گھر کے لیے آگے، تو حضرت عائشہ بھاگتے ہوئے آئی اور اپنے بستر پر آ کر سو گئی، لیٹ گئی۔ اب یہ حضرت عائشہ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی مجھے آتے ہوئے دیکھ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، اپنے بستر پر جاتے ہیں، سونے سے پہلے حضرت عائشہ سے کہتے ہیں یا عائشہ اظننتی ان یحیف اللہ ورسولہ، اے عائشہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے برا گمان کرتی ہو؟ کیا تم میرے تعلق سے برا گمان کرتی ہو؟ کیا میں آپ کا حق مارتا ہوں؟ کیا آپ میرے تعلق سے برا گمان کرتی ہو؟ اللہ کی قسم آپ کو چاہیے کہ آپ ہرگز اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے بدگمانی نہ کریں، برے گمان میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ رسول ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میرے اور آپ کے رحمت للعالمین ہیں، سارے کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے نبی جب گھر سے باہر نکلے تو حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا شوہر، آپ کا نبی آپ کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ چاہتی تو نہ چاہتی تھی، لیکن حضرت عائشہ بھی دیکھی کہ اللہ کے نبی آخر رات درمیان میں اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے آ کر دیکھی۔ لیکن اللہ کے نبی کہاں جا کر آئے؟ کہاں جا کر آئے؟ قبرستان جا کر دعا کر کے آئے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہتے تھے۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी इमामत की जिम्मेदारी एक गांव के अंदर दी थी। ये आपके साथ नमाज पढ़ते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक मर्तबा नमाज पढ़ने के बाद ईशा की नमाज पढ़कर एक उनकी जिस गांव के अंदर हजरत मुआज बिन जबल इमामत करते थे वहां पर गए और वहां के लोगों को इमामत करवाए, नमाज पढ़ने के लिए खड़े। पहली रकात जब शुरू किए तो सूरतुल फातिहा के बाद ईशा की नमाज चल रही है, सूरतुल बकरा शुरू कर दिए। सूरह फातिहा के बाद सूरतुल बकरा शुरू कर दिए और हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु जिस गांव के अंदर इमामत करते थे वो करिया था, वो छोटा सा देहात था, वो छोटा सा गांव था और वहां के लोग किसान थे, सारे के सारे खेती बाड़ी करने वाले थे। सारे के सारे बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम करके थके मांदे थक कर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर पहली रकात में सूरतुल बकरा शुरू की गई है, उसमें से एक आदमी नमाज के लिए खड़ा हो गया है, एक सहाबी नमाज के लिए आए हैं, खड़े हो गए। लंबी नमाज है, सोचे 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 नमाज के अंदर भाई रकात रुकू में जाने का नाम ही नहीं है, लंबी नमाज है। अब वो समझ गए कि भाई मेरे से नहीं होता, मैं थक गया हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करके मजदूरी करके थक गया हूं। दरमियान में रकात छोड़कर नमाज खत्म करके चले गए, अपनी नमाज पढ़ के घर चले गए। बाद में सलाम के बाद हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी खबर होती है, मालूम हो जाता है, किसी ने उनको बता दिया होता है। तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु सोचे नहीं समझे नहीं, उनके ताल्लुक से उन गांव वालों के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है, बस नमाज पढ़ाना चले जाना और गांव वालों की हालत हजरत मुआज को ही मालूम। तो उस आदमी पर मुनाफिक होने का ऐलान कर दिया कि वो आदमी मुनाफिक हो गया है, वो आदमी मोमिन नहीं है, वो आदमी मुसलमान नहीं है। जैसे ही इस आदमी को पता चल गया फौरन नबी के पास गए, जाकर बोले ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक छोटे से देहात में रहता हूं, मैं करिया में रहता हूं, हम सारे के सारे लोग काम करके थक कर आते हैं, नमाज को आते हैं और हजरत मुआज पहली रकात ही में सूरह बकरा की शुरू कर दिए हैं, तो हमारा हाल क्या होना। हालांकि हम लोग थके मांदे लोग हैं और मैं नमाज छोड़कर चला गया तो हजरत मुआज मुझ पर मुनाफिक होने का ऐलान कर दिया और मुनाफिक होने का फतवा लगा दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आते हैं और हजरत मुआज को नसीहत करते हुए कहते हैं, या मुआज, ऐ मुआज, अफताली, क्या तुम फितना और फसाद पैदा करना चाहते हो, तुम फितना फैलाना चाहते हो लोगों के दरमियान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज को नसीहत करते हुए कहते हैं, ऐ मुआज, अगर आप चाहते तो वश्शम्सी व दुहाहा, सूरत शम्स या सूरह दुहा वगैरह की तिलावत करके अपनी रकात को खत्म कर देते थे। तुम अगर इतने बड़े बड़े सूरतें अगर नमाज के अंदर पढ़ाओगे, तिलावत करोगे तो लोगों को तकलीफ होगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज था। हजरत मुआज पर ये तरबियत का अंदाज इतना ज्यादा हो गया, माशाअल्लाह, इतना बेहतरीन अंदाज हुआ, इतना बेहतर असर अंदाज हुआ कि एक मर्तबा अब ये बात खत्म हो गई तो ग़ज़वे तबूक के मौके पर सारे के सारे सहाबा जंग लड़ने के लिए गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को लाकर हाजिरी लेते रहे कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन आया कौन नहीं आया। तो उनमें से कुछ सहाबा नहीं आए, उनमें से एक सहाबी थे, उनका नाम था काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो अपनी मजबूरी की वजह से जल्दी उस जंग के अंदर शरीक ना हो सके, जंग के अंदर हिस्सा ना ले सके, जंग के अंदर फौरन जल्द आ ना सके। तो अब अल्लाह के नबी पूछे, भाई काब कहाँ है, काब बिन मालिक नहीं दिख रहे। तो किसी ने कह दिया, सोचे नहीं समझे नहीं, कह दिया कि अल्लाह के नबी काब क्यों आएंगे, वो तो बड़े मालदार हैं, वो गुरूर है उनके अंदर, तकब्बुर है उनके अंदर, इसलिए वो नहीं आए हैं। तो फौरन यहां पर हजरत मुआज थे, क्योंकि उनके साथ एक वाकया हुआ था। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि अल्लाह के नबी, ये आदमी गलत कह रहा है, हजरत काब बिन मालिक बेहतरीन आदमी है, सहाबी में से है और वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता, हो सकता कोई मजबूरी हो उनकी। देखिए, गुमान नहीं करना, किसी भी सहाबी किसी भी आदमी के ताल्लुक से बुरा ख्याल नहीं करना, बुरा नहीं सोचना और उनके ताल्लुक से बदगुमानी में मुब्तला हरगिज नहीं होना, हरगिज नहीं होना। यहां पर हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी को समझाते हैं, सहाबी को समझाते हैं कि नहीं, अल्लाह
अल्लाह के नबी कोई काम हो सकता है। बाद में हजरत काब बिन मालिक आते हैं, आकर उनका जो किस्सा था वो सुनाते हैं कि कुछ मजबूरी थी, मैं इसलिए नहीं आ सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वाकई को मुख्तसर करके आपके सामने पेश करता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खामोश हो गए और उनके साथ बैकात करने का ऐलान कर दिया कि उनके साथ कोई भी बात मत करो। कोई भी साहबी बात नहीं करते थे। हजरत काब बिन मालिक रोते धोते दुआ करते परेशान थे। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल की और उनके जो तौबा कबूल की, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर उसके ताल्लुक से इरशाद फरमाया। तो उनके बारे में अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जो तौबा उनकी जो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल की थी, उसके ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। तो कुल मिलाकर पता ये चला कि कोई भी भाई या बहन कोई भी हो, अपने भाई या बहन के ताल्लुक से कभी भी बुरा गुमान नहीं करना, क्योंकि माशरा ऐसा माशरा है कि छोटी सी बात की वजह से भाई भाई में रिश्ता टूट जाता है, मियाँ और बीवी में रिश्ता टूट जाता है। माँ अपने बेटे के ताल्लुक से बदगुमानी में आकर बुरा गुमान करके अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल देती है और रिश्तेदारियों में दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। इसी छोटे से बदगुमानी की वजह से आपस में बुग़्ज़ व अदावत पैदा हो जाती है और मोहब्बत खत्म हो जाती है, भाईचारा खत्म हो जाता है, उल्फत खत्म हो जाती है। यहां तक कि जितने भी माशरे के अंदर मियाँ और बीवी पाए जाती हैं, बीवी और शोहर और बीवी पाए जाते हैं, उनको चाहिए कि बदगुमानी से बचें। अगर कोई भी आकर अपनी बीवी के ताल्लुक से या कोई भी आकर अपने शोहर के ताल्लुक से किसी को अगर कुछ बताना चाहता है तो बगैर सोचे समझे के उनकी बात को ना माने, बगैर सोचे समझे के, बगैर तहकीक किए के उनकी बात को हरगिज़ ना मानी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आकर बोलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, मेरी बीवी ने एक बच्चे को पैदा किया, मैं भी खूबसूरत हूं, मेरी बीवी भी खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत हूं और मेरी बीवी भी खूबसूरत है, लेकिन हम दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा काला है, वो बच्चा काला है, खूबसूरत नहीं है, उसका रंग सियाह है, क्या हो सकता है? अब अल्लाह के नबी को पता चल गया कि ये आदमी बदगुमानी में आ गया है, ये आदमी अपनी बीवी पर इल्जाम लगाना चाहता है, ये आदमी अपनी बीवी के ताल्लुक से बुरा गुमान करना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज क्या प्यारा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के समझाने का अंदाज कितना निराला था, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी से कहते हैं, क्या आपके पास ऊंटनियां हैं? तो आदमी कहता है कि ऊंटनियां हैं, पूरे हैं। तो कहते हैं कि आपके पास जितनी भी सुर्ख यानी लाल ऊंट हैं उनमें से काले ऊंट भी हैं? तो कहते हैं कि हाँ हैं। अब उतने सारे लाल ऊंट हैं, उनके दरमियान में से एक काला ऊंट कहां आ गया, कहां से आ गया? आपके पास इतने सारे लाल ऊंट हैं, उनके दरमियान से काला ऊंट कहां से आ गया? तो वो आदमी कहता है कि अल्लाह के नबी, हो सकता है कि उनकी नस्ल में से या इन ऊंटों की नस्ल में से कोई या तो ऊंट या ऊंटनी काली या काला होगा, इस वजह से ये भी क्या है, मेरे पास जो ऊंटनी है वो काली आ गई है। तो वो आदमी समझ गए कि मैं अपनी बीवी के ताल्लुक से बदगुमान हो गया। वो आदमी बड़े फितने से, बड़े आजमाइश से बच गया और इतने बड़े आजमाइश से बच गया क्योंकि ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता है, बड़ा मोतबर रिश्ता होता है, बड़ा बरकत वाला रिश्ता होता है। इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश शैतान करता है और शैतान आदमी को किसी न किसी तरीके से आदमी को आकर वहम गुमान में मुब्तला करके क्या है, इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। जो शैतान ज्यादा से ज्यादा हरबा जो इस्तेमाल करता है वो है बदगुमानी है। बुरे गुमान को किसी न किसी तरीके से सहाबा तक को नहीं छोड़ा, शैतान बदगुमानी में मुब्तला करना सहाबा को भी नहीं छोड़ा। मैं और आप जानते हैं, वाकई इसको मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के साथ ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक में जंग के लिए रवाना हो गए।
जंग के लिए रवाना हो गए। जंग मुकम्मल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग के लिए जाते तो अपने साथ किसी न किसी बीवी को लेकर जाते, अपने अज़वाज मुताहरात में से किसी न किसी को अपने साथ लेकर जाते। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को अपने साथ ले लिया, बुला लेकर चले गए। जाने के बाद जंग मुकम्मल हो गई। वापस आते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के करीब एक जगह पड़ाव डाला, वहां पर रुक गए, क्योंकि सारे सहाबा की जो जरूरियात थी वो जरूरियात को सहाबा मुकम्मल करने। वहां पर हजरत आयशा भी थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त एक झाड़ के नीचे आराम फरमा रही थी। सारे के सारे लोग अपना अपना काम मुकम्मल कर लिए और वहां से निकल गए। हजरत आयशा को छोड़ दिए। अब अल्लाह के नबी ये समझ गए कि हो सकता है आयशा भी हमारे साथ आ गई होंगी। चले गए। सारे सहाबा जाने के बाद एक सहाबी बचे थे, उनका नाम है हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां पर मौजूद थे। अचानक उनकी नजर हजरत आयशा पर पड़ती है, क्योंकि जब हजरत आयशा को हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाहु अन्हु इससे पहले एक मर्तबा देखे थे जब पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। देखते ही समझ गए कि यह आयशा है रज़ी अल्लाहु अन्हा। देखते ही फौरन अपनी जबान से इन्ना लिल्लाह पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और अपनी सवारी को लाए, वहां पर बिठा दिए। हजरत आयशा उस पर बैठ गए और हजरत सफ़वान नीचे उतरकर उसको सवारी को लेकर उसकी नकील को पकड़कर मदीना ले गए। जैसे ही मदीना में दाखिल हुए, पहला कदम पड़ा, वहां पर जा रहे थे तो इब्लीसों के सरदार ने, मुनाफिकों के सरदार ने, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल इसका नाम है, ये मुनाफिकों का सबसे बड़ा सरदार था, मुनाफिकों का सरदार था। इसका काम ही यही था कि कोई ना कोई एक छोटा सा अगर नुक्ता उसको मिल जाता तो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता, मुसलमानों को पामाल करने की कोशिश करता। अब इसको सबसे बड़ा अच्छी चीज मिल गई कि वहां पर देख लिया। हालांकि हजरत सफ़वान नीचे हैं, हजरत आयशा ऊपर हैं। देखते ही फौरन सारे लोगों ने जाकर इल्जाम लगा दिया हजरत आयशा के ऊपर कि सफ़वान ने हजरत आयशा के साथ जिना किया है। हालांकि देखा नहीं है। ओला बोलकर मस्ती में आकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को पामाल करने के लिए शैतान ने, इस इब्लीस ने एक खेल खेला। बार बार अगर किसी के भी चार लोगों के सामने एक बात को बार बार अगर बोलेंगे तो सामने वाला भी उस बात को सही समझ लेता। इस गुनाह को अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने इतना फैलाया कि नऊज़ु बिल्लाह कुछ सहाबा भी इसकी बातों में आ गए कि बात को सही समझ लिए। उसमें से हजरत हस्सान बिन साबित भी थे। कुछ सहाबा भी उसकी बात में आकर सही समझ लिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात जाती है, हजरत आयशा को बात पता चलती है, उनके वालिद हजरत अबू बकर को पता चलती है। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, उधर हजरत आयशा परेशान, उनके बाप हजरत अबू बकर परेशान, सारे सहाबा परेशान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से मशवरा करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, बार बार मशवरा करते हैं। अल्लाह के नबी परेशान है कि अब क्या होगा, कि कौन सही है। अल्लाह के नबी खामोश हो गए थे। एक महीने के इंतजार के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल की। उन आयतों में यह था कि हजरत आयशा बरी हैं, हजरत आयशा पाक हैं। हजरत आयशा के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने आयतों को नाजिल किया कि हजरत आयशा गुनहगार नहीं है। ये सुनने ही वलौला इज़ समिअतमुहु ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم खैरा। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है कि आप अपने भाई या बहनों के ताल्लुक से जब कोई भी बात सुनते हो तो अच्छा गुमान क्यों नहीं करते हो, बुरा गुमान क्यों करते हो। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम किसी के भी ताल्लुक से कुछ भी सुने, कोई भी आकर हमारे कान भरे या किसी के ताल्लुक से कुछ बोले तो फौरन उसकी बात में आकर उसकी बात को सही नहीं समझना चाहिए। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग उस बदगुमानी में आ गए थे उनको 80 कोड़े मारकर सजा दिए। कितने?
80 कोड़े मारकर सजा दिए। भाइयों, शैतान किसी न किसी तरीके से भाई भाई में रिश्ते को जोड़ने की कोशिश नहीं करता है, तोड़वाने की कोशिश करता है। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम किसी के भी ताल्लुक से अगर कुछ सुनते हैं तो फौरन उनकी बात में आना नहीं चाहिए, उनकी बातों को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु में और आप जानते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बड़े सख्त थे। अगर किसी गुनाह को देखते तो फौरन गुस्से में आते, उसको सजा देते और सजा देने की कोशिश करते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उनकी खिलाफत में हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु को कूफा का गवर्नर बनाया। कूफा का गवर्नर बनाकर उनको इमामत की जिम्मेदारी दे दी। अब हजरत अम्मार बिन यासिर वहां पर इमामत कर रहे थे। ये कूफा के लोग ऐसे हैं, हर शरारत के कामों में सबसे पहले यही लोग होते हैं, फितना फैलाने के कामों में सबसे पहले कूफा ही वाले होते हैं। जितने भी बिदआत हैं, खुराफात हैं, शरारत के जितने भी काम हैं, ये कूफा वाले ही शुरू करते हैं। ये कूफा वाले खामोश नहीं बैठते, कभी भी खामोश नहीं बैठते। तो अब हजरत अम्मार बिन यासिर बेहतरीन नमाज पढ़ाने वाले थे। जाकर ये लोग क्या है, किसी न किसी तरीके से हजरत अम्मार बिन यासिर को बदनाम करने की कोशिश करके जाकर हजरत उमर के पास गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाकर बोले कि आप जिस आदमी को हमारा इमाम मुकर्रर किए हैं, जिस आदमी को हमारा गवर्नर बनाए हैं, जिस आदमी को हमारे मस्जिद के आप इमाम बनाए हैं, वो आदमी बराबर से ये नमाज नहीं पढ़ाता है। वो आदमी जैसे नबी नमाज पढ़ाते थे, जैसे नबी नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए कहते थे, वैसा ये आदमी नमाज नहीं पढ़ाता है। अब हजरत उमर अगर सुनने के बाद अगर चाहते तो क्या कर सकते थे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बात को सुनने के बाद चाहते तो उनको बुलाकर सजा दे सकते थे, उनको बुलाकर मार सकते थे, उनको गुस्सा कर सकते थे। लेकिन हजरत उमर बुलाकर बोले, आओ एक मेरे पास। बुलाए हजरत अम्मार बिन यासिर को। बुलाने के बाद बोले कि एक मर्तबा आप नमाज पढ़ो मेरे सामने। नमाज पढ़ाए हजरत अम्मार बिन यासिर, नमाज पढ़ाए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप बेहतरीन नमाज पढ़ाए। ये लोग शरारती लोग हैं, ये लोग शर फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग फितना और फसाद फैलाने वाले लोग हैं। मैं आप ही को इमाम मुकर्रर करता हूं, आप जाओ फिर से इमामत करने के लिए चले जाओ। तो भाइयों, पता ये चला कि कोई भी आदमी आकर अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से या अपने माँ बहनों के ताल्लुक से या अपने भाइयों के ताल्लुक से आकर अगर कुछ बोलता है तो फौरन उसकी बात में नहीं आना चाहिए, उसकी बात को मानना नहीं चाहिए, उसकी बात को तस्लीम करने से पहले तहकीक करना चाहिए, तफ्तीश करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए कि ये आदमी जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये आदमी लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए बोल रहा है या फितना और फसाद पैदा करने के लिए बोल रहा है या अपनी हमारी इस्लाह के लिए बोल रहा है, ये पहले सोचना चाहिए। लेकिन आज हमारा नौजवान गर्म खून वाला है, अगर कोई सामने वाला कुछ बोल देता है तो फौरन उनकी बातों में आ जाते हैं, फौरन गुस्से में आते हैं। ये सब मुनासिब नहीं है, ये सारी चीजें मुनासिब नहीं है। कोई भी आकर कुछ अगर बुराई या किसी के ताल्लुक से अच्छा भी अगर बोलता है तो पहले सुनना चाहिए, फौरन उसकी बात को सुनकर हाँ भाई वो आदमी वैसा, हाँ भाई ये आदमी ऐसा कहते, ये सब बातें हम नहीं बोलना। जब तक हम अपनी आंखों से किसी बुराई को या किसी अच्छाई को नहीं देखते, जब तक मैं और आप अपनी आंखों से किसी आदमी के अखलाक को नहीं देखते, उस वक्त तक उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते और कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये इस्लाम मुझे और आपको सिखाता है कि अपने भाइयों के ताल्लुक से हमेशा अच्छा गुमान रखें, बुरा गुमान ना रखें, और किसी की बुराई अगर मालूम भी हो जाती है तो चार लोगों के सामने ले जाकर उसकी बुराई को ना फैलाएं, उसकी बुराई को ना उछालें। ये इस्लाम मुझे और आपको इजाजत नहीं देता है कि किसी के ताल्लुक से या किसी के घराने के ताल्लुक से अगर हमको कुछ मालूम होता है तो उस बात को वहीं पर दफन कर दें, उस बात को वहीं पर रख दें। किसी की राज को ले जाकर किसी और के सामने या अपने भाइयों के सामने ले जाकर उनकी बात को उनके सामने पेश ना करें, उनके राज को लोगों के सामने ले जाकर फाश ना करें। ये इस्लाम मुझे और आपको ऐसी तालीम देता है। हजरत ईसा रजी अल्लाह अन्हु के जमाने का जिक्र करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत ईसा रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक आदमी था, चोरी करते हुए पकड़ा गया। अगर मैं और आप किसी चोरी करने वाले को देखेंगे, किसी चोरी करने वाले चोर को देखेंगे तो क्या करेंगे? हर आदमी या तो उसको सजा देंगे या तो उसको मारेंगे या उसके साथ कुछ एक्शन लेंगे, जो करना है वो करेंगे। अब हजरत ईसा के जमाने में जो आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया
تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس کے تعلق سے اچھا گمان کیا حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ آدمی کسی مجبوری میں چوری کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دو، یہ اچھا گمان۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ہمیشہ اچھا گمان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیوی حضرت صفیحہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، رات ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر گئے، کچھ دور تک گئے تو وہاں پر دو صحابہ تھے، آپ کو دیکھ لیے حضرت صفیحہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیحہ کو وہیں پر روک دیے اور روک کر بولے، ان صحابہ کو دونوں کو بلا کر بولے کہ میری بیوی حضرت صفیحہ ہیں۔ تو یہ سنتے ہی دو صحابہ پریشان ہوئے، نعوذ باللہ، اے اللہ کے نبی، آپ تو نبی ہیں، ہم آپ پر کیسے تہمت لگا سکتے ہیں، ہم آپ پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں، ہم آپ کے تعلق سے کیسے بدگمانی میں آ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے پہلے ہی ان کو گمان میں آنے سے پہلے ان کو بتا دیا کہ میری بیوی ہے، میں ان کو وہاں پر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کام بھی ایسا کریں کہ سامنے والا ہمارے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے اور گمان ہمارے تعلق سے برا گمان نہ کرے، کیونکہ کام ایسا کریں کہ سامنے والا ہمارے تعلق سے برا گمان یا برا خیال نہ کریں۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بھائیوں کے تعلق سے، ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا سوچنے اور اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانی اور مصیبت کو تو ہی دور فرما، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان تمام کو جلد از جلد شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔